Hello everyone, welcome back. In the series Mycology, in this video we are going to discuss about systemic mycosis. Mycosis is a term which is defined as the diseases which are caused by fungi. Systemic mycosis, these are a group of fungal infections that affect various organs and tissues throughout the body. That means that they affect different systems of our body. Before that, when we studied subcutaneous or the cutaneous mycosis, they were only confined to the skin and underlying tissues. But systemic mycosis, they have potential to spread through the body and cause more widespread and more severe infections. In our syllabus, we have to study 4 systemic fungi. First, coccidios, histoplasma, blastomyces, and paracoccidios. The mnemonic to remember these 4 are HI, PCB. PCB मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. So H for histoplasma, P for paracoccidios, C for coccidios, and B for blastomyces. So high PCB is a mnemonic to remember these 4 systemic mycosis. First, we need to understand what are the general characteristics of these systemic mycosis. General characteristics means what is common among all these systemic mycosis. The first characteristic that they all are endemic fungi. Endemic fungi means they are localized to certain geographical area. They are present in that geographical area and produce disease only there. तो जो भी हैं systemic fungi, they are only present in a certain geographical area, वहीं पे disease cause करते हैं. So when we study the individual mycosis, individual systemic fungi, we need to remember कि कौन सा fungi कौन से एरिया में प्रेजेंट होता है. They all are dimorphic fungi, which means that they exist in 2 forms. One is mold form and others yeast form. We've already studied what is dimorphism. But one is exception, which is coccidioids. Other all 3, histoplasma, paracoccidios, and blastomyces. Those 3 exist in mold and yeast form, but coccidioids also exhibit dimorphism, but coccidioids is present in mold form and spherule form. We already know कि जो mold form होता है वो soil में present होता है, outside the environment मतलब environment में होता है, outside the body होता है, but जो yeast form है वो body के अंदर होता है. तो when coccidioids enter the body, it is not converted into yeast form, but it forms spherules in the tissues. All the mentioned systemic fungi, they cause pneumonia, they cause lung infections, and they can disseminate, they can produce widespread infections throughout the body because they are systemic fungi. They involve the systems, they can disseminate, they cause disseminated infections. Systemic fungi cause granulomas in the lungs. This resembles to the TB. इनके जो इन्फेक्शन है वो टीबी से रिजेंबल करते हैं. द रिजेंबलेंस इज दे बोथ फॉर्म ग्रेनुलोमास, बट द डिफरेंस इज दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू. आवर फर्स्ट सिस्टमिक फंजा इज हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम. Histoplasma capsulatum is the causative agent which causes histoplasmosis. The disease is known as histoplasmosis. कैरेक्टरिस्टिक्स इस एजेंट के क्या क्या होंगे? अगेन इट वुड बी थर्मली डायमॉर्फिक. इसके 2 फॉर्म्स होंगे, मोल्ड फॉर्म एंड यीस्ट फॉर्म. यू नो ऑलरेडी ये एंडेमिक है, तो इसकी लोकेशन भी याद करनी कि ये किस एरियाज़ में प्रेजेंट है. इसका जो मोल्ड फॉर्म है, ये जो जिस सॉइल में प्रेजेंट होता है, दैट सॉइल इज़ इनरिच्ड विथ बर्ड ड्रॉपिंग्स. वो सॉइल कंटेमिनेटेड होगी बर्ड ड्रॉपिंग्स के साथ, मेनली बेड्स के बर्ड ड्रॉपिंग्स के साथ. तो उस सॉइल में ज़्यादातर हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम प्रेजेंट होता है. इसका जो मोल्ड फॉर्म में हाइफी प्रेजेंट होती है और हाइफी में एसेक्सुअल स्पोर्स डेवलप होते हैं. तो इसके जो मोल्ड फॉर्म है वो 2 टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स बनाता है. इन 2 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स के नाम है, एसेक्सुअल स्पोर्स को हम कोनिडिया कहते हैं. तो 2 टाइप्स ऑफ कोनिडिया है, एक मैक्रोकोनिडिया है और दूसरा माइक्रोकोनिडिया है. ये जो मैक्रोकोनिडिया है, दिस कैन बी शोन इन पिक्चर ए में. देखिए, द मैक्रोकोनिडिया इज़ लार्ज विथ टिपिकल थिक वॉल एंड इसके ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी हैं. सेकेंड जो माइक्रोकोनिडिया है इन द बी, इट इज़ वेरी स्मॉल एंड थिन एंड स्मूथ वॉल्ड. तो डिफरेंस इज दैट कि इट्स लार्ज, इट्स स्मॉल, इट्स थिक वॉल्ड, इट्स थिन वॉल्ड, और इसके पास ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, बट इट इज़ स्मूथ. जो माइक्रोकोनिडिया विच इज़ स्मूथ.
एंड इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? जो माइक्रोकोनिडिया हैं, दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज़, इन द ट्रांसमिशन ऑफ दिस एयरबोर्न asexual spores. Microconidia is the mode of transmission of this disease. The other, which is the macroconidia, it is important for lab identification. ये lab diagnosis में काम आता है, हिस्टोप्लाज्मा के diagnosis में काम आता है, बट जो माइक्रोकोनिडिया वो असल में डिजीज़ कॉज करवाता है. अब we already know कि they will cause lung infections, so we need to understand what is the pathogenesis of this fungi. When a person is exposed to soil which is contaminated with histoplasma spores, soil which is contaminated with bird droppings जिसमें histoplasma के spores होंगे, particularly microconidia, not macroconidia, क्योंकि microconidia के inhalation से ही ये disease होती है. When these are inhaled तो ये lungs में जाएंगे. तो inhalation of histoplasma conidia spores, they are इनहेल इनटू द, ये लंग्स में जाएंगे और लंग्स में जाके वी नो कि ये डायमॉर्फिक फंजाई हैं. डायमॉर्फिक का मतलब है कि दे विल एग्जिस्ट इन टू फॉर्म मोल्ड, एंड जैसे बॉडी में एंटर होंगे, जैसे लंग्स में एंटर होंगे तो दे विल बी कन्वर्टेड, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द यीस्ट फॉर्म. इन द यीस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएंगे जब लंग्स में जाएंगे तो लंग्स में एल्विलाई में जाएंगे. एल्विलाई में वी नो देयर आर एल्विलर मैक्रोफेजेस, तो एल्विलर मैक्रोफेजेस इनको इंजेस्ट करेंगे. अब दिस पिक्चर शोज़ द एल्विलाई, और ये दिस पिक्चर शोज़ द मैक्रोफेज. ये मैक्रोफेज का न्यूक्लियस है और ये प्रेजेंट हुए यीस्ट सेल्स विच आर इंगल्फ्ड बाय द मैक्रोफेज. सो द सीरीज ऑफ स्टेप्स इज़ दैट के एक्सपोजर टू द सॉइल हो गया और वो सॉइल कंटेमिनेटेड स्पोर्स के साथ बंदे ने इनहेल कर लिए. स्पोर्स लंग्स में गए, लंग्स में एल्विलर मैक्रोफेजेस हैं, एल्विलर मैक्रोफेजेस उनको यहाँ तक उन्होंने इंगल्फ कर लिया है. तो ये मैक्रोफेज के अंदर प्रेजेंट है यीस्ट सेल्स. अब यीस्ट क्या करेंगे? मैक्रोफेज को क्या करना है? इनको किल करना था, इनको ईट अवे करना था, बट मैक्रोफेज इज़ अनेबल टू डू सो बिकॉज यीस्ट क्या करता है यहाँ पे, इसके जो मैक्रोफेज के एंजाइम्स उनको डीएक्टिवेट कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है. हाउ डज दिस, और ख़ुद रेप्लिकेट करता है, ख़ुद सर्वाइव करता है. हाउ डू यीस्ट डू दिस? कि यीस्ट सर्वाइव विद इन द फेगोलाइसोसोम ऑफ द मैक्रोफेज. यीस्ट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है सम अल्कलाइन सब्सटेंसेस विच रेजेस द pH of the macrophage, thereby inactivate the degradative enzymes of phagolysosome. In summary, what is happening के again I am summarizing the pathogenesis कि exposure तो हो गया soil के साथ उस person का, उसने माइक्रोकोनिडिया को इनहेल किया स्पोर्स को, और फिर वो स्पोर्स कन्वर्ट हो गए yeast form में in the lungs there are alveolar macrophages which will engulf the yeast cells. उसके बाद वो yeast cells वहाँ पे जाके replicate करेंगे, वहाँ पे जाके सर्वाइव करेंगे. कैसे सर्वाइव करेंगे? वाई मैक्रोफेजेस को किल नहीं कर रहा है? क्योंकि यीस्ट सेल्स अल्कलाइन सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि उस मैक्रोफेज के पीएच को रेज करते हैं और वहाँ के एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं. उसके बाद जब ये सेल्स बर्स्ट आउट हो जाते हैं, यीस्ट सेल निकल जाते हैं यहाँ से, तो ये यीस्ट सेल डिसेमिनेट होंगे अदर ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में, पर्टिकुलरली लिवर में, स्प्लीन पे, और वहाँ पे जाके अपना डिज़ीज़ कॉज करते हैं. तो आखिर में होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स होगा, यहाँ पे डिज़ीज़ आउटकम होगी. अगर इफ़ द पर्सन इज़ हेल्दी तो इन्फेक्शन कैन रिजोल्यूट. इफ़ द पर्सन इज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो फिर डिज़ीज़ मोर प्रोग्रेस करते हैं. डिजीज़ आउटकम्स में हमने साइन एंड सिम्टम्स में नज़र आएंगे. इफ़ द पर्सन इज एसिम्टोमेटिक, मेनली द इन्फेक्शंस आर एसिम्टोमेटिक, अदरवाइज इफ़ द डिजीज़ इज सिम्टोमेटिक तो अक्यूट में क्या सिम्टम्स होंगे और क्रोनिक में क्या होंगे. अक्यूट सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन में फीवर, हेडेक, क्योंकि ये लंग्स को इन्वॉल्व करते हैं तो कफ और चेस्ट पेन होगा, मोर इंटेंस होगा तो निमोनिया होगा, कैविटी लंग लीजन्स होंगे, ग्रेनुलोमास की फॉर्मेशन होगी इन लिवर एंड स्प्लीन एज वेल, क्योंकि डिसेमिनेट होगा तो लिवर स्प्लीन को भी इफेक्ट करेगा. क्रोनिक सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन में फीवर परसिस्ट करेगा, डिज़निया होगी, प्रोडक्टिव कफ होगी और एटिपिकल इन्फ्लुएंजा कैविटीज़ नज़र आती हैं एक्सरेज और अदर रेडियोग्राफिक इमेजिंग पे. इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल में क्योंकि डिजीज़ मोर प्रोग्रेस करती है तो फॉलोइंग मैनिफेस्टेशंस अकर. अल्सरेशन होगी, टंग की अल्सरेशन, प्लेटल अल्सर्स फॉर्मेशन होगी, स्प्लीनोमेगाली होगी क्योंकि स्प्लीन इज़ इन्वॉल्व, पैनसाइटोपिनिया इज़ देयर, और एराइथमा नोड्यूजम.
हाउ डू वी डायग्नोज हिस्टोप्लाज्मा? हिस्टोप्लाज्मा की डायग्नोसिस के लिए फर्स्ट इज़ डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, सेकंड टेक्निक है कल्चर है, सीरोलॉजी है, लीज़ा टेस्ट है, PCR है एंड स्किन टेस्ट है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी पे में क्या नजर आएंगे, हम टिश्यू बायोप्सी स्पेसिमेन लेंगे या फिर बोन मेरो एस्पायरेट लेंगे और जब उसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो यीस्ट विजिबल विद इन मैक्रोफेज। यू नीड टू रिमेंबर कि हमने यीस्ट नज़र आएंगे बट यीस्ट मैक्रोफेज के अंदर नज़र आएंगे विच वॉज शोन इन द पिक्चर, ऐसे नज़र आएंगे। दिस इज़ द पिक्चर विच शोज द हिस्टोप्लाज्मा यीस्ट प्रेजेंट विद इन द मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज है, ये न्यूक्लियस है मैक्रोफेज का, ये दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। सेकेंड इज़ कल्चर। कल्चर पे कल्चर हम करते हैं सबोरार्स एगार पे। तो कल्चर पे हमें क्या नज़र आएगा, वी ऑलरेडी स्टडीड कि इसके पास दो कोनिडिया थे, मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया। माइक्रोकोनिडिया तो डिजीज़ में इन्वॉल्व हो गया, जो मैक्रोकोनिडिया है वो हमें लेब आइडेंटिफिकेशन कराता है। यहाँ पे कल्चर पे मैक्रोकोनिडिया ग्रो करते हैं और वो नज़र आते हैं। सीरोलॉजी में हम डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज़, IgM और IgG एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं बाय टू मेथड्स। फर्स्ट इज़ CF टेस्ट और अदर इज़ IDCF मतलब कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, और ID में इम्यूनो डिफ्यूजन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में हम इसके हिस्टोप्लाज्मा के एंटीजन्स लेते हैं और पेशेंट का सीरम लेते हैं और एंटीबॉडी एंटीजन का क्रॉस रिएक्शन देखते हैं। तो एंटीबॉडी टाइटर ऑफ 1:32 अगर है तो दैट मीन्स के द डिजीज़ इज डायग्नोस्टिक। सेकेंड जो ID है इम्यूनो डिफ्यूजन है, उसमें हम प्रेसिपिटेटिंग एंटीबॉडीज़ देखते हैं जो 2 बैंड्स बनाती हैं MNH, तो फिर वो डिटेक्टेबल होती हैं। इस इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट में अगर आप इफ़ यू वांट टू नो मोर तो इसमें हम क्या करते हैं कि हिस्टोप्लाज्मा के पहले हम एक एगार जेल प्लेट लेते हैं, उसमें हम हिस्टोप्लाज्मा के एंटीजन्स रखते हैं। उसके बाद हम पेशेंट का सीरम ऐड करते हैं। पेशेंट के सीरम में अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं और वो प्रेसिपिटेट होके बैंड्स बनाती हैं। ये प्रेसिपिटेशन एंटीबॉडीज़ की होती है, वो लाइंस बनाती हैं। 2 बैंड्स अगर फॉर्मेशन होती है MNH की तो वो टेस्ट पॉजिटिव होता है। एलिजा टेस्ट में हम हिस्टोप्लाज्मा पॉलीसेकेराइड एंटीजन्स की डिटेक्ट करते हैं। PCR पे DNA RNA प्रोब्स देखते हैं। लास्ट इज स्किन टेस्ट। स्किन टेस्ट इज़ अवेलेबल फॉर इज़ डन फॉर हिस्टोप्लाज्मा और उसमें जो है 5 मिलीमीटर इन ड्यूरेशन इंडिकेट्स दैट के इन्फेक्शन हैज़ अकर्ड। दिस इज़ अ पॉजिटिव रिजल्ट। एंड लास्ट इज़ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट एसिम्प्टोमेटिक अगर है, माइल्ड है, प्राइमरी इन्फेक्शन है तो देयर इज़ नो नीड ऑफ थेरेपी। और इफ़ डिसेमिनेटेड डिजीज़ इज अकर्ड, पल्मोनरी डिजीज़ इज अकर्ड तो एम्फोटेरेसिन B और आइट्राकोनाजोल यूज़ करते हैं। प्रिवेंशन नो वैक्सीन इज़ अवेलेबल। और फॉर क्रोनिक सप्रेशन इन एड्स पेशेंट आइट्राकोनाजोल यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज द मेन प्रिवेंशन इज़ टू अवॉइड एक्सपोजर इन एंडेमिक एरियाज। जहाँ पे भी एंडेमिक एरियाज हैं जहाँ पे ये इन्फेक्शन परसिस्ट करता है वहाँ के एक्सपोजर को अवॉइड करना चाहिए। सो इन समरी व्हाट वी स्टडीड हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम. Just a quick revision, histoplasma capsulatum causes histoplasmosis, which is a thermally dimorphic organism. मोल फॉर्म होता है, यीस्ट फॉर्म होता है. जो सॉइल है वो बर्ड ड्रॉपिंग्स के साथ कंटेमिनेटेड होती है. इसके 2 एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, 2 कोनिडिया हैं, मैक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया. माइक्रोकोनिडिया ट्रांसमिशन कराता है डिजीज़ की. मैक्रोकोनिडिया लेब आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है. पैथोजेनेसिस जैसे ही सॉइल से कंटेमिनेटेड सॉइल से एक्सपोजर होगा, माइक्रोकोनिडिया इनहेल्ड होते हैं. माइक्रोकोनिडिया इन द लंग्स ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू यीस्ट फॉर्म, और यीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद मैक्रोफेजेस उनको इंगल्फ कर लेते हैं. फिर यीस्ट वहाँ पे जाके सर्वाइव करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं. उसके बाद ये डिसेमिनेट होते हैं वेरियस ऑर्गन्स में और डिफरेंट सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर देते हैं. साइन एंड सिम्टम्स लंग्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. कफ, चेस्ट में निमोनिया, डिस्निया, प्रोडक्टिव कफ. अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो अल्सरेशन, स्प्लीनोमेगाली, पैनसाइटोपेनिया. ये इन्हें लेब डायग्नोसिस में डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी पे हमें यीस्ट नजर आएगा विद इन माइक्रोफेज. कल्चर पे मैक्रोकोनिडिया. सीरोलॉजी में IgM IgG एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं. और स्किन टेस्ट. ट्रीटमेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू. द रिमेनिंग systemic mycosis would be discussed in another video. Thanks for watching. Please support this channel by like, share and subscribe to the channel.